Good morning, students. This is the second lecture of IT 402 subject. So today's topic of discussion that is network topology. Within network topology, we will do the introduction of topology, basic types of topology, and some assignment questions I'll give you after that. So moving on to the next slide. This is what is network topology. See, in the last lecture we have discussed about the types of networks. Here it is the network topology. We know the types of networks. Now see how our computers in a network are arranged physically or even logically. That is the network topology. हम अपने कंप्यूटर्स को किसी भी नेटवर्क में किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं वो होती है टोपोलॉजी. इट कैन बी फिजिकल और लॉजिकल ऑल्सो. ठीक है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी करेंगे यहाँ पे कि नेटवर्क में किस किस टाइप की टोपोलॉजीज होती है बेसिकली. हियर आई हैव गिवन यू दिस चार्ट दैट इज mesh topology, star topology, bus topology, ring and hybrid. 5 topologies we'll discuss about in this particular lecture. Starting with the first topology, that is mesh topology. In the mesh topology, each computer is connected to everyone. हर एक कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर से अटैच्ड होता है. वी हैव अ डायग्राम इन द नेक्स्ट स्लाइड आफ्टर दिस स्लाइड. So by that diagram it will be more clear. So let's show you that these bulleted points we will discuss there in that slide, right? Here, see, in this we have how many nodes we have in this diagram? We have 5 nodes here. Node means the computers, that is node 1, 2, 3 and 4. See, here in this mesh topology, every computer is connected to every other computer. Like node 1, computer 1 is connected with node 2, node 3, node 4, node 5, and node second is connected with node 1, node 5, node 4, node 3. means हर एक नोड हर दूसरे नोड से कनेक्टेड है, right? See the above bulleted point. Every device or network has n-1 IO ports to connect n-1 stations. हमारे पास यहाँ जैसे 5 stations है. We having 5 stations 1, 2, 3, 4 and 5. So every device, suppose device 1 मान लीजिए network का, it is connected to how many other computers? Other 4 computers. See, every device or network has n-1 IO ports. अगर 1 है, n की वैल्यू क्या है बताइए पहले. n will be 5. n is equal to number of computers or number of nodes. We have 5, so n minus 1 will be 5 minus 1. 5 minus 1 means 4. How many IO ports we have? 4 IO ports in this particular case, because number of nodes can be anything. In our example it is 5. IO ports. How many IO ports are there? 4 IO ports. What is IO ports? That is input output ports, right? Why? Because see, for example take computer 1. It has 4 ports. जहाँ पे आप wires को connect करते हैं that is port. System 1 है, उसके पास 4 ports हैं. यहाँ पे in this particular case देखिए आप 1 को देखिए अगर नोड को in this diagram, कितने लिंक्स जा रहे हैं इससे बाहर, कितने लिंक्स जा रहे हैं, कितने वायर्स जा रहे हैं. एक 5 की तरफ जा रहा है, 1 is going to 4, 1 is going to 3, 1 is going to 2. How many are going out? 4 links are going out, so it is having 4 IO ports, right? एक तो वो खुद है, that is why we did n-1 ना, like 5 minus 1 4 IO ports हैं. 2 के पास भी वैसे ही कितने लिंक्स हैं, 1 is going to 1, 1 is going to 5, 1 is going to 4, 1 is going to 3, like so and so forth for other computers also, right? Advantages: dedicated link guarantee. See, dedicated link is there. If for example node 1
wants to send data to node 5, it has a private, you call it private, or a dedicated wire cable that connects node 1 to node 5. It doesn't have to, the data going from node 1 doesn't have to travel to take any random route, like 2 पे जाए, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे पहुंचे. There is no such need because it's having its own dedicated link with 5. That is called a dedicated link. ठीक है. इफ 1 को अपना डेटा 2 को भेजना है, 3 को भेजना है, 4 को और 5 को, इट इज़ हैविंग इट्स डेडिकेटेड लिंक विद ऑल ऑफ द अदर नोड्स. अपने अपने अपना खुद का डेडिकेटेड लिंक है हर किसी के साथ. शेयर नहीं करना पड़ रहा किसी भी लिंक को, अपना खुद का लिंक है उसके पास उस जगह जाने का. वैसे ही 4 पे जाने का 1 से, फिर 1 से 3 पे जाने का 1 से 2 पे, 1 से 5 पे, सबके लिए अपना अपना लिंक है. सेम इज़ फॉर अदर नोड्स ऑल्सो. इफ़ वी वॉन्ट टू गो फ्रॉम 2 to 5, 2 से 5 पे जाना है. If we want to go to 2 to 4, it has a dedicated link. If we want to go to from 2 to 3, it has a dedicated link. Want to go to from 2 to 1, 2 से 1 पे जाएं तो dedicated link है. सबके पास है अपना. Eliminate traffic problems. अब traffic problems इसलिए नहीं आएंगे because it's having its own private dedicated link. शेयरिंग तो करनी नहीं पड़ रही है, एक ही वायर की आप शेयरिंग कर रहे हैं सारे नोट्स, ऐसा तो है नहीं. अपना अपना डेडिकेटेड लिंक है, तो इससे ट्रैफिक नहीं होगा. अगर 1 को 5 पे कुछ भेजना है उसके, तो वो ही 5 पे वो अपने खुद के लिंक से भेजेगा. उस लिंक के अंदर ना ही 2 वाले नोड का डेटा ट्रैवल करेगा, ना 3 वाले नोड का, ना 4 वाले नोड का. 1 से 5 के पास जो है सीधा डायरेक्ट कनेक्शन, यू कैन सी दैट, अपना खुद का वायर है, लिंक है. कोई और नहीं अगर ट्रैवल कर रहा है, वो उसका 1 से 5 की तरफ जाएगा, 5 से 1 की तरफ आएगा, सीधे उसी लिंक, डेडिकेटेड लिंक से जो उनके बीच में है, 1 और 5 के बीच में. इस वजह से ट्रैफिक नहीं होगा. दैट इज़ द रीज़न वाई देयर इज़ नो ट्रैफिक इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क. रोबस्ट भी है. रोबस्ट किस लिए है, रोबस्ट क्यों होता है, किस लिए बोलते हैं, वाई वी कॉल इट रोबस्ट. रोबस्ट बिकॉज सी, अगर कोई एक पर्टिकुलर लिंक फेल होता है, देन अदर लिंक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय इट. अगर 1 से 5 के बीच का केबल कट हो गया, it will not affect the other computers, right? That is why it is robust. Entire network is not going down because of failure in one link. एक लिंक के फेलियर से पूरा का पूरा हमारा नेटवर्क फेल नहीं हो रहा है, इसलिए वो रोबस्ट है. जब पूरे नेटवर्क पे किसी एक लिंक का फर्क ना पड़े, दैट इज द रोबस्ट नेटवर्क. Privacy and security, there is privacy and security because of course when you have a dedicated link, आप बीच में किसी और को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो डेडिकेटेड लिंक है उनके बीच में, देन प्राइवेसी मेंटेन रहेगी. आपको आपके पास खुद का लिंक है उस जगह पे जाने के लिए, आप किसी और लिंक को शेयर नहीं कर रहे हैं किसी के साथ. देन गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. डिसएडवांटेजेस, सी वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ केबलिंग. बहुत केबलिंग चाहिए. हर एक कंप्यूटर के पास अपना अपना डेडिकेटेड लिंक है, वो शेयर करने को तैयार नहीं है या उसको शेयरिंग नहीं करवाई जा रही है, तो सबको अपना अपना लिंक दिया जा रहा है. आप अपना अपना लिंक बनाइए, अपनी अपनी केबलिंग सब यूज़ करिए. This facility is given in the mesh topology, so that is why there will be a lot of cost. It will be bulky, it will be expensive, lot of space will be required for so much of wiring. Installation बहुत मुश्किल है. What is installation? If we want to install one more computer, suppose, it will also bring a lot of wiring again. अगर मैं इसी डायग्राम जो दिया था लास्ट स्लाइड में नोड 6 अटैच करूं, तो उसके लिए मेरे को केबलिंग भी बहुत चाहिए. 6 को आप 1 से कनेक्ट करेंगे एक वायर से 2 से, देन 3, देन 4, देन 5, और इट विल रिक्वायर दोज many wires. लास्ट नोट इज देयर, जनरली नॉट इम्प्लीमेंटेड. ये बहुत practical, this is not very practical to do this, that is why it's not implemented.
Is mesh topology robust? This is question 1 mark question. Yes, it is robust. Why? Because किसी एक लिंक के फेल होने से पूरा फेल नहीं होता है. That is why it's robust. Moving on to the next slide. Star topology. See, you can see there are two diagrams given. Central hub is required. Central यहाँ पे चाहिए होता है जो सारी ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है. ट्रांसमिशन मतलब डेटा ट्रांसमिशन. अगर 1-3 पे कुछ भेजना चाह रहा है डेटा, देन वो डायरेक्टली नहीं जा सकता. इट विल फर्स्ट हैव टू गो टू द हब, देन हब विल ब्रॉडकास्ट द मैसेज. 2 को भी भेजना है 4 को. सपोज इफ 2 wants to send the data to node number 4, it will have to first go to the central hub, then only the data will reach to the desired node, right? It's not like that this topology looks like a star only. The basic idea is that there will be a central device that is always required. Data cannot go directly to the desired destination. It will first have to go to the central device from where the data will be broadcast to the rest of the nodes, right? That is the star topology. Okay, this now is given in the first bullet point. Hub always broadcast message, so not intelligent device. See, hub is not an intelligent device, or maybe you can call it a dumb device. Why? Because if you, for example, if you want to send data from node 1 to node 3, it will not just send the data to node 3. It will just broadcast the message. The message will be sent to all the nodes that are attached with the hub. बाकी जितने सारे आपके डिवाइसेस अटैच्ड हैं सबके पास चला जाएगा वो मैसेज, क्योंकि वो नहीं डिस्टिंग्विश कर पाता हब कि किसको भेजना चाहिए, किसके पास जाना है मैसेज. वो उसे नहीं रीड कर पाता है. दैट इज़ वाई इट्स नॉट एन इंटेलिजेंट. डिवाइसेस भी होते हैं. आपका स्विच है इंटेलिजेंट डिवाइस. वो ये पता लगा के उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, कंटेन करता है वो इंफॉर्मेशन कि ये वाला डेटा किस एड्रेस पे जाना है. स्विचेस पता लगा पाते हैं, हब्स नहीं पता लगा पाते. तो हब डम डिवाइस हैं और स्विचेस इंटेलिजेंट डिवाइस हैं. स्टार टोपोलॉजी में आपका हब जैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है. तो बताया मैंने, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट दिस इज़ अ डम डिवाइस. इट ब्रॉडकास्ट द मैसेज. ब्रॉडकास्ट मतलब जब आप बिना एड्रेस के पूरे नेटवर्क पे उस पर्टिकुलर डेटा को सेंड कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं, राइट. देन द सेकेंड बुलेटेड पॉइंट, ओनली 1 IO पोर्ट इज़ रिक्वायर्ड. सिर्फ एक इनपुट आउटपुट पोर्ट चाहिए. मैंने आपको पोर्ट्स के बारे में बताया. वाई? सी, वाई 1 इज़ रिक्वायर्ड. 1 जो आप मान लो आपके नोड 1 है, तो एक ही तो पोर्ट है 1 के पास जहाँ से वो हब से वायर रिसीव करा. वैसे ही 2 के पास एक पोर्ट है, 3 के पास, 5 के पास पोर्ट है, सबके पास जहाँ पे आपका वायर अटैच हो जो हब से जा रहा है, राइट. सो इट हैज़ ओनली 1 IO पोर्ट. नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं? लिंक मतलब केबलिंग कितनी चाहिए आपको. डायग्राम में यू कैन सी इट. n, हाउ मेनी? n, what is n? n is the number of computers. In the third bulleted point you can see the formula. If somebody asks you, we have 5 computers, so what will be the number of links? Yes, it will be 5. It is be equal to the number of computers attached. हब के पास जितने कंप्यूटर अटैच करने हैं उतने वायर्स चाहिए होंगे हमको, राइट. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट टू पॉइंट लिंक. आपको ये भी पूछा जा सकता है कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक कौन सा है इनमें से. दे कैन गिव यू इन द फॉर्म ऑफ MCQ. दे कैन राइट द हब, they can write star topology, they can write mesh topology, other remaining topologies. You'll have to choose of them which of them are or is point to point link. One of the point to point link is star. Next slide. This is the bus topology. In this bus topology, a single backbone wire is being shared by all the other attached computers. एक बैकबोन में एक केबल रन करता है, कॉमन केबल होता है, उस पर हम सारे कंप्यूटर्स को अटैच करते हैं. यू कैन सी द लेबलिंग ऑल्सो. जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइसेस आर अटैच्ड. 7 डिवाइसेस अटैच्ड है तो नंबर ऑफ लिंक्स कितने होंगे, कितने वायर्स अटैच्ड हैं. सी लेबलिंग, सी द लेबलिंग. ड्रॉप लाइन इज गिवन. नंबर ऑफ ड्रॉप लाइन कितने हैं? 1 का, 1, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का,
7 ड्रॉप लाइन्स हैं, एक बैकबोन है. What is the totaling? 7 plus 1, that is 8. Number of links are 8. You can see this in the box. The formula is given. Number of links is equal to n plus 1. N is the number of computers, and plus 1 will always be there, because in case of bus topology there is a common cable. We count that also, of course. N plus 1. Here it is 7 plus 1, 8 number of links. This question may be asked to you. They'll give you the number of computers and value of n will be given. That means and plus 1 will be done by you only, because you know it, right, that bus topology has one backbone always, that central cable. Only one IO port is required, like we did in the star topology. I told you that one IO port is required. Here also we require one IO port, because अगर हमको बैकबोन पे अटैच करना है मान लो नोड 1 को, तो नोड 1 पे जो बैकबोन से वायर ड्रॉप लाइन जा रही है वो वहाँ पे किसको अटैच करेगी? पोर्ट पे ही वायर को अटैच करेगी, राइट? ओके, यहाँ एक ध्यान दीजिए, इट इज़ नॉट रोबस्ट. थर्ड एरो पे देखिए, थर्ड एरो का पॉइंट, इट इज़ नॉट रोबस्ट. रोबस्ट नहीं है तो क्या मतलब? मैंने पहले डिटेल किया है इसको. रोबस्ट नहीं है तो अगर सिस्टम कहीं पे बैकबोन अगर कट हो जाए, वायरिंग कहीं पे, तो पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा. मान लीजिए ये जहाँ नोड हमने 1 अटैच किया इन द डायग्राम गिवन, सी इट, यहाँ पे मैं नोड 1 शुरू होने से पहले ही बैकबोन पे एक वायर को कट कर दूँ, तो 1 2 3 4 5 6 आगे के सारे सिस्टम्स फेल हो जाने हैं. सिग्नल विल नॉट बी डिलीवर्ड देन, बिकॉज हमारा बैकबोन केबल कट हो गया वहाँ से. तो एक जगह कट होने से क्या हो गया, आपका योर एंटायर नेटवर्क गोज डाउन. तो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट रोबस्ट. This may be asked in one mark question. Is it robust or not? No, bus topology is not, right? See, last वाला क्या था? Star topology, point to point topology था ना? See the here in the last arrow point. Bus topology क्या है? Multi point. This one is not point to point. This is multi point. Backbone पे multiple devices attached है, not just a single. Here we have the multi-point topology. Star topology was point-to-point topology. Here we have given, see, there is a central backbone running and other devices are attached with that central backbone. Devices can be anything. It's a server, computer, it can be other hosts, it can be laser printer, it can be scanner, it can be anything that is attached to the network. Now moving on to the next slide. This is ring topology. See, it forms a ring. Ring doesn't mean that it has to be circular in shape, as you can see the below diagrams, right? Are these all in the shape of a circle? No. It is a closed loop. Doesn't have to be a circle, but it is a closed loop, right? So all resistors are connected to one another, and it is, remember it, it is a closed loop. See, ring topology, each device has a dedicated point to point connection. इसमें भी point to point connection, 1 is connected to 3, 3 is to 4, 4 is to 1. It is a closed loop, so it is point to point topology with only the 2 devices on either side of it. See, अब यहाँ पे देखिए कितने पोर्ट्स चाहिए, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स इस वाले टोपोलॉजी में 2. Why? See the diagram on the left side. One node, it is having 2 ports, एक उसके लेफ्ट की तरफ, एक उसके राइट की तरफ, राइट? एक तरफ वो 2 से कनेक्टेड है, एक तरफ वो 4 से कनेक्टेड है. तो कितने चाहिए पोर्ट्स उसको, आईओ पोर्ट्स? 2. Go to the second node. How many nodes it's having? Sorry, how many links it's having? 2 links है ना, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड. It's connected to 1 node, it's connected to 3 node directly. Okay, connection with only the 2 devices on either side of it. Then a signal is passed in one direction from device to device until it reaches destination.
सिग्नल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। आप ये डोंट थिंक दैट इट इज द फॉर्म ऑफ अ क्लोज लूप, दैट मीन्स दैट इट कैन गो इन एनी वे डायरेक्शन। अगर वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 आ रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। इट विल नॉट गो फ्रॉम द अदर साइड, इट विल नॉट गो फ्रॉम 1 to 4 to 3 to 2। एक ही डायरेक्शन में चलेगा। आपको एक एडिशनल थिंग आई विल जस्ट टेल यू, आपको बोथ डायरेक्शन चाहिए तो आपको इसके बाहर पैरेलली एक और वायर रन कराना पड़ेगा। अभी एक वायर जा रहा है, आपको दूसरी एक और वायर और पैरेलली अटैच कर दीजिए। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। तो एक क्लॉकवाइज में डेटा सिग्नल भेजेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज में डेटा सिग्नल को सेंड करेगा। उस केस में इट कैन बी डन, बट वील हैव टू सेट अप 2 पैरेलल वायर्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है जैसे मैथमेटिक्स में, उस तरीके से। बट इफ यू हैव वन वायर देन इट विल जस्ट गो इन वन डायरेक्शन until it reaches its destination. Last point, each device incorporate a repeater. हर एक डिवाइस में रिपीटर होता है। You can see on the right side, 1 is having a repeater, node 2 is having a repeater, 4 is having a repeater, all are having a repeater. Why are repeater required? See, अगर नोड 1 को नोड 4 को डेटा सेंड करना है, ठीक है, पहले किस पे जाएगा? 2 पे, देन 3 पे, देन 4 पे। रिपीटर क्या करेगा? सिग्नल को वापस से बिल्टअप करता है। सिग्नल मान लीजिए वीक हो गया तो 2 से 3 पे जाने पे, 3 से फिर 4 पे जाएगा और वीक हो जाएगा। तो वो रिपीटर का काम ये रहता है कि वो सिग्नल को रीबिल्ड करता है, देन उस स्ट्रॉन्ग सिग्नल फिर 3 को जाएगा, फिर 3 उसको रीबिल्ड करके फिर वो 4 पे जाएगा। तो रिपीटर्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि 2 पे जाएगा, 2 विल नॉट एक्सेप्ट द डेटा, इट विल गो टू 3, 3 विल नॉट एक्सेप्ट द डेटा बिकॉज दैट इज इंटेंटेड टू गो टू द नोड 4। 4 पे जाना है, जिस पे जाना है वो एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी सब उसे रिजेक्ट कर देंगे जो उसके रास्ते में आएंगे। राइट नाउ मूविंग ड्रॉबैक्स ऑफ दिस रिंग टोपोलॉजी। एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट, एक्सपेंसिव है इम्प्लीमेंट करना, बनाना इसको, बिकॉज ईच क्लाइंट नीड मल्टीपल केबल्स। एक क्लाइंट को मल्टीपल टेबल्स की रिक्वायरमेंट हो रही है, बिकॉज जैसे 1 है वो दोनों तरफ से कनेक्टेड है, 2 भी दो तरफ से कनेक्टेड है, 3 भी दोनों तरफ से कनेक्टेड है। सेकेंड, डिफ़िकल्ट टू कन्फिगर एंड मेंटेन करना इसको बहुत मुश्किल है। मेंटेन करके मीन्स मेंटेनेंस is also required. See, when we set up a network, we have to be ready for the maintenance also, क्योंकि network problems are always there. So network administration is also required. There is no fault tolerance in ring topology. कोई फॉल्ट आ गया तो फिर वो उसको रेक्टिफाई करना, पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कहाँ पे फॉल्ट आया है। सिंगल केबल फेलियर कैन प्रैक्टिकली ब्रिंग द एंटायर नेटवर्क डाउन। सी रोबस्ट भी नहीं है ये, आप लास्ट पॉइंट से देखिए। सिंगल केबल ब्रिंग द एंटायर नेटवर्क, केबल की एक तरफ भी थोड़ा सा फेलियर हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। मतलब सी ऑन द लेफ्ट साइड, अगर 1 और 2 के बीच का लिंक ब्रेक हो गया, केबल ब्रेक हो गया केबल, तो 1 मुझे 4 पे आई हैव टू ट्रांसमिट द डेटा टू नोड नंबर 4, विल आई बी एबल टू? नो, आई विल नॉट बी एबल टू सेंड डेटा टू एनी ऑफ द अदर नोड्स। ना 3 पे जाएगा ना 4 पे जाएगा, बिकॉज लिंक तो पहले ही ब्रेक हो चुका है, 2 से पहले ही ब्रेक हो चुका है। इट इज लिंक इज ऑलरेडी ब्रोकन बिटवीन 1 and 2. So if one wants to send any data, it will not be able to send the data to the node number 4, or you say to the node number 3, or maybe some other nodes will be connected. Further nodes will not be able to receive the data. It will not be first. Now is the only last topology, hybrid topology is remaining. Above points of ring topology is given. I have already discussed that with you. Number of IO ports required. सबसे पहला एरो पॉइंट ऊपर एट द टॉप। IO पोर्ट्स कितने चाहिए? 2 मैंने बोला था, दोनों तरफ से 2 अलग अलग नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है वो। जैसे 1 था हमारा 4 से भी कनेक्ट हो रहा था, 2 से भी कनेक्ट हो रहा था। आप अगर रिंग टोपोलॉजी इफ़ यू सी इन द लास्ट स्लाइड, तो 2 सबको चाहिए ना, दोनों तरफ IO पोर्ट लगे थे, वो मैंने डेफिनेशन एक्सप्लेन करते वक्त ही आई टोल्ड यू। नंबर ऑफ रिंग रिक्वायर्ड, कितने लिंक्स चाहिए? 1 से 2 पे 1, 2 से 3
पे एक, 3 से 4 पे एक, 4 से 1 पे एक, कितने हो गए? जितने कंप्यूटर अटैच किए हैं उतने ही लिंक ज़रूरी पड़ रहे हैं। डायग्राम को भी देख के एक बार गिन लो उनको, तो यू विल गेट टू नो अबाउट इट, राइट? दैट इज इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल आई एम डिस्क्राइबिंग यू. Unidirectional, that also I have told you, एक ही डायरेक्शन में रन करता है. Not robust, this also I told you. Why? Because if we break the link between 1 and 2, 1 क्या फिर 4 पे या 3 पे डेटा सेंड कर पाएगा? No, it will stop working, the entire network will come down. Only bus and ring are not robust. बस ये एक पॉइंट याद रख लो, हैश पॉइंट, हैश ओनली बस एंड रिंग आर नॉट रोबस्ट. इन दोनों को छोड़ के अदर ऑल अदर आर रोबस्ट. ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस सिर्फ इन दो में नहीं होता, बाकी में फॉल्ट टॉलरेंस हो जाता है. बाकी रोबस्ट हैं ये दो को छोड़ के. You don't have to learn each and every topology separately, but just learn this, that these two are not robust, rest of the systems are all robust. If I ask you in one more question, you just remember this point, that these two, only these two are not robust. Then the hybrid topology. हाइब्रिड में देखिए सीधा डायग्राम, ये एक तरीके से रिंग भी बन रहा है प्लस बस भी बन रहा है, दोनों होते हैं हाइब्रिड में. कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 2 टोपोलॉजी होता है हाइब्रिड. ज़रूरी नहीं है कि इट हैज़ टू बी जस्ट स्टार एंड बस. ये वाला पर्टिकुलर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस, राइट? स्टार क्या है? 1 2 3 नोड्स निकल रहे हैं स्टार से. अगर मैं इसको एक स्टार बना दूँ तो यू कैन इमेजिन इट, राइट? एंड जो उस पे से नोड निकल रहे हैं उस पे 4 बस के टोपोलॉजी के तरीके से कनेक्ट कर रखे हैं कंप्यूटर्स. तो दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार प्लस बस टोपोलॉजी. हाइब्रिड का मतलब ये होता है कोई दो टोपोलॉजी लो, उससे आप एक हाइब्रिड बना दो, दैट विल बी द हाइब्रिड टोपोलॉजी. दिस ऑल is for today's class. These are the questions. You can try these questions given. I have given you 8 to 10 questions around. You may ask these answers of these questions. First you try doing them and make notes, and you can send personally the message. You can drop the message to me and make notes, and please show the notes to me, all of you, in one day only, personally, in my WhatsApp number, not in this group, in my own WhatsApp. You can WhatsApp the notes made by you by tomorrow, and do these questions. You can post the answers also, all of you, along with your names and roll numbers. Name and roll number, and then your files attached with that, right? And next we will do some other topic. You just prepare this first. Thank you.